Good morning. Welcome back to another class of Origin and Evolution of Life. So, in the last class, we were doing a topic called as um, evidences from comparative anatomy. I told you this is one of the important chapter, important section with respect to your exam point of view. So, we completed homologous organs, we completed analogous organs, and we also derived conclusion that homologous organs explain adaptive radiation, जिसका classic example ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे. ठीक है. Then we spoke about analogous organs, which explains adaptive convergence, and later it also explains convergent evolution or parallel evolution. तो classic example था evolution of marsupials and evolution of placentals in Australia. Right. Now, the next anatomical evidence which we will be talking about in this section is vestigial organs. बेटा, अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है ये सबको पता है ना. समथिंग ऑर्गन विच वंस अपॉन अ टाइम मे बी इट हैड अ फंक्शन बट नाउ इट absolutely has no function, or in other words we have lost the function. We can survive without these organs absolutely, right? For example, एक classic example हमारा आता है wisdom teeth. wisdom teeth का स्पेसिफिकली हमको कोई अब नहीं भी आया तो भी काम चल जाएगा ना बेटा, है ना. अब वो तो हमारी इनएविडेंट पार्ट है. 32 सेट ऑफ टीथ है, तो इनएविडेंट पार्ट है दैट विजडम टूथ अराइव्स, बट उसके बिना भी काम चलता है. करेक्ट. Similarly, there are several other vestigial organs in human beings. There are several vestigial organs in, for example, अगर मैं पाइथन में देखूँ, अगर मैं वेल्स में देखूँ, तो वेल्स में हाइंड लिम्ब के remnants है. There is pelvic girdle which is seen in a whale skeleton. So technically it is a vestigial organ. It is vestigial. pelvic girdle का कोई उसको कोई specific requirement ही नहीं है. There is no hind limbs for whales, right? So vestigial organs में here you have to understand the examples. There is a vestigial organ which is referred to as plica seminularis or third eyelid. हम मानते हैं कि हमारे पास भी एक थर्ड आईलिड है. हमको पता है आंखों के तरफ टुवर्ड्स द लैटरल साइड एक रेडिश कलर का पोर्शन है, दैट इज द थर्ड आईलिड, ऑल्सो कॉल्ड एज द निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन. करेक्ट. सो देयर आर several vestigial organs which we need to understand. Okay, our vestigial organ explains a concept called as atavism. Now what is atavism we'll see in the subsequent lectures, but for now you have to understand in humans what are the I have given you the vestigial organ ka list in your notes as well, but we'll write down and we'll discuss each and every examples with respect to the vestigial organ. सबसे पहला जो हमने organ जो बहुत बेसिक है वो लिख लेंगे बेटा, है ना. पहला वाला है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ना रहा तो भी हमारा काम तो चल जाएगा, but बहुत सारे scientists are now saying that vermiform appendix is a lymphoid organ, and it has a little role in your maintaining your immunity. Second example is plica seminularis. Plica seminularis, also called as the seminularis, also called as the nictitating membrane. और दी थर्ड आईलिड कॉकरोच को है और अपना फ्रॉग को है ना, विच इज हेल्पिंग देम टू प्रोटेक्ट द डैमेज कॉज टू द आईबॉल और कॉर्नियल सरफेस विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल कंडीशन. एक्सटर्नल एनवायरमेंट बोलो, एक्सटर्नल वाटर कंडीशन बोलो, पीएच बोलो, एक्सेट्रा. तीसरा अक्कल दांत, दैट इज योर विजडम टीथ. विजडम टूथ का कोई यूज नहीं है बेटा अपन को, ठीक है. सिमिलरली निपल्स इन दी मैन. Okay. Apart from this, there are several other organs which we have to talk about. Is we do not require body hair.
तो बॉडी हेयर इज ऑल्सो वन ऑफ द बॉडी हेयर इज ऑल्सो वन ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन, क्योंकि हमको बॉडी हेयर की ज़रूरत नहीं है खास विशेष। जैसे एनिमल्स को बॉडी हेयर की ज़रूरत है बिकॉज दे शो एक्सप्रेशन, इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू यू नो एज अ प्रिवेंशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर। बट हमारे बॉडी हेयर से हमको टेम्परेचर कंट्रोल तो नहीं होता बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कॉकिक्स, दैट इज योर टेल बोन। इट इज अगेन अ रेमनेंट कि हम भी टेल्ड ऑर्गेनिज्म से निकले हैं। सिमिलरली यू हैव योर ऑरिक्यूलर मसल्स, कान के पीछे कुछ स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं, वी डू नॉट रिक्वायर दैट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट दीज लार्ज एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स है, डॉग्स है, काउज है, तो वो कान हिला सकते हैं, दे कैन मूव देयर ईयर्स विद रिस्पेक्ट टू विद द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ऑरिक्यूलर मसल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज सेगमेंटल मसल्स। सिक्स पैक मसल्स का कोई काम नहीं है हमको बेटा। सेगमेंटल मसल्स ऑफ द एब्डोमेन, सिर्फ शाइनिंग मारने के लिए हमको ज़रूरत है, एब्स दिखाने के लिए हमको इसका मसल्स का ज़रूरत है, सेगमेंटल मसल्स और रेक्टस एब्डोमिनस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर एग्जांपल, दैट इज केनाइन्स। वी डोंट रिक्वायर केनाइन्स। किसी किसी लोगों को आपने देखा रहेगा कि जिनके केनाइन्स बहुत शार्प होते हैं, एकदम कुत्ते जैसे, कुछ भी बोल दिया, ठीक है, बट डोंट गेट मी इन अ वेरी रॉन्ग वे, बट कुछ लोगों के केनाइन्स बड़े दिखते हैं। सो दैट इज अगेन अ इंडिकेशन दैट वी ऑल्सो हैव अराइज्ड फ्रॉम दीज। वंस अपॉन अ टाइम आवर एंसेस्टर ऑल्सो हैड शार्प केनाइन्स। तो आपको डायरेक्ट ये एग्जाम्पल्स याद करने हैं बच्चा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इन अदर एनिमल्स, अब कीवी में विंग्स वेस्टिजियल है, वेल में एक्सटर्नल ईयर वेस्टिजियल है। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपको नोटबुक पे लिखा है बेटा। ओके, सो इन अदर एग्जाम्पल्स आई टोल्ड यू, फर्स्ट पहला एग्जाम्पल लेते हैं हाइंड लिम्स। हाइंड लिम बोन्स है बेटा, हाइंड लिम एंड पेल्विक। हाइंड लिम बोन्स लिखते हैं बेटा, कंफ्यूजन नहीं होगा। हाइंड लिम बोन्स एंड पेल्विक गर्डल। In python and whale. Apart from that, you also deep sea oceans में जो organisms को, fishes को आँख होती है, उसका कोई यूज ही नहीं है बेटा, because there is no light technically, so it is the eyes does not help you to locate things, right? So eyes in deep sea fishes, then you have wings of the flightless birds, these are a few examples which we need to understand. Apart from this, there is also splint bones. Okay, so just a few examples you have to play with and vestigial organ gets over there, ठीक है। अब vestigial organ एक concept explain करता है which talks about atavism. Okay, now atavism is a property, it is a phenomenon of appearing of the lost characters. Phenomena of appearance or appearing of the lost character, and it also gives us a relation with respect to the ancestral origin. जैसे इस बच्चे के फोटो में देखो, इस बच्चे को एक छोटा सा पूंछ निकल आया है। सो अगेन दिस व्हाट यू कैन सी हियर, ये पूंछ जो आपको दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट अ इंडिकेशन। कुछ रेयर केसेस में होते हैं बेटा ऐसे कि बच्चों को और टेल निकल आते हैं, तो दैट इज अगेन अ रेयर केस। सो द टेल विच इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग, which was once upon a time our ancestral monkey का कैरेक्टर था, बट उसका रेमनेंट वो
दिख क्या आता है? तो appearance of the lost character is referred to as atavism. Is that very clear? So atavism basically talks about our ancestral origin. Is that right? Similar examples of atavism देख लो, यहाँ पे मैंने कुछ examples दिखाए हैं. That is appearance of the, ये देखो पूरा monkey, this is explaining us कि हमारा ये दोनों फोटो हमको explain कर रहा है कि monkeys हमारे origin के है, monkeys या ape origin, ape हमारे ancestors है, because once upon a time we were also this way. ठीक है, look at this is the hind limb which is seen in a dolphin या whale like structure में से hind limb दिख रहा है आपको. ठीक है, hind limb appear हो क्या था, this is an unusual condition, not everyone can see this. ठीक है, आप YouTube में एक I have seen a photograph of a lady who has such a condition. So ये देखो, जैसे छोटे से बच्चे के throughout the body बाल आए हैं, and it is just like it appears like a ape structure. So this is ape की body ऐसे लग रहा है. So that condition is referred to as atavism. A few more examples of atavism. So ये relation बता रहा है बेटा कि ये जो whale है या फिर अगर ये dolphin है या whale है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा, बट अगर ये organism है that has arrived from a four-legged ancestor. अगर मैं ये आदमी और ये बच्चे की कंडीशन देखूं, सो इट इज इंडिकेटिंग दैट आवर एंसेस्टर्स, दिस पर्टिकुलर दैट एंसेस्ट्रल ओरिजिन इज अ एप. इज दैट राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अ फ्यू मोर एग्जांपल्स. दैट इज, सी लुक एट दिस, ये डायग्राम, अपीयरेंस ऑफ मल्टीपल निपल्स, more than two nipples are absolutely common, so more than two nipples, that is also one of the ancestral character. जैसे dogs को more than two nipples होते हैं, है ना, cow को 4 nipples होते हैं, teater जिसको teats जिसको बोलते हैं. ठीक है, so look at this is the extra nipples which you can see. ये रेमनेंट है बेटा, दिस इज एन इंडिकेशन. ये हमारा रिलेशन बता रहा है कि एक ज़माने पहले मैमल्स नहीं थे, तो मैमल्स की जगह पे एप्स भी नहीं थे, फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर मंकीज भी नहीं थे, बट स्टिल देयर वेर मैमल्स which had such conditions who were existing on the face of the earth. And we have evolved, monkeys have evolved from non-monkey organisms. ठीक है, non-monkey organisms में मे भी ऐसा more than two nipples, more than two nipples है technically, dogs में है, cats में है. So this is again giving you a indication. ठीक है, there are some these structures which you can see here, these are called as cervical fistula. cervical fistula ऐसे कुछ remnant है, ऐसे कुछ गांठ के जैसे स्ट्रक्चर दिखती है, and the cervical fistula is a remnant of, it is a remnant of pharyngeal gill slits. इसी जगह पे हमारी pharyngeal gill slit एक जमाने पहले थी. So it is the remnant of pharyngeal gill slits. ओके बेटा, सो दिस इज नथिंग बट atavism, जो हमको क्लियर इंडिकेशन बता रहा है कि एक ज़माने पहले हमारे पास भी pharyngeal gill slits थी. और ये क्या है, pharyngeal gill slits is a common feature of a chordate embryo. So we have arrived, once upon a time there were no humans but there were some other dominant organisms. So उसी organism, उस dominant organism से हम धीरे 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 इवॉल्व होकर एक नया organism बना पा रहे हैं, that is human beings. ठीक है, सो दैट एंड्स विद कंपैरेटिव एनाटॉमी. वेस्टिजियल ऑर्गन बहुत ही छोटा सा सेक्शन था. नाउ वी आर जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी. ओके, एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी. नाउ हियर बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेफरिंग टू कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पर्टिकुलरली उसी रीजन में मिलेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल जिराफ आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ अफ्रीका में कॉन्सेंट्रेटेड है. प्लैटिपस, एकिडना, ये आपको सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, अपना ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा. एमू, सॉरी माय मिस्टेक, कीवी आपको सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलेगा. कैसोवरी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा. सो सेवरल areas, several geographical distribution, several geographical areas of the
entire world have distributed the biological world, have distributed the biological entities, that is plants and animals. ठीक है. So in other words, biogeography talks about distribution of plants and animals with respect to geographical isolation. When you have geographical isolation, what is the geographical isolation? कुछ geographical changes की वजह से isolation आ गई. For example, when you talk about Australia, why do you see such a beautiful diversity in animals in Australia? Because Australia got separated from the entire mainland and it was surrounded by water, correct? So in other words, Australia got geographically isolated since a very long time. ठीक है. And since it is covered by water from all the sides, the bioflora, या जो भी fauna and flora of Australia was reserved and it was contained to that one particular place. ठीक है. So distribution of plants and animals with respect to the geographical isolation. Now there was a scientist called as Alfred Wegener. He tried to explain the distribution of the biological world. He was trying to explain us कि why only ostriches are seen in Africa and South America, why only giraffe is seen in Africa. So he was trying to convey, or he was trying to explain the entire distribution of the biogeography by putting forward a very important theory, that is theory of continental drift. Theory of continental drift, also called as टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी क्यों बोला? बिकॉज किसी ने ये चीज़ देखी नहीं है, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा. टुडे व्हाट यू कैन सी इज 7 कॉन्टिनेंट्स, करेक्ट? बट दो 7 कॉन्टिनेंट्स वेर नॉट एज इट वॉज वंस अपॉन अ टाइम. ठीक है. तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो थे ये एक ही लैंड पीस में थे, एंड दैट वन लैंड पीस विच हैड 7 कॉन्टिनेंट्स इज रेफर्ड टू एज पैंजिया. ठीक है. सो पैंजिया एक जमाने पहले, और वो जमाना क्या था? पैंजिया वाज सीन अराउंड द कार्बोनिफेरस पीरियड, दैट इज योर मिसिसिपियन एंड डेवोनियन पीरियड. पैंजिया वाज सीन इन द कार्बोनिफेरस पीरियड, एंड दिस सिंगल लैंड पीस, यह तो अभी अपने मार्क किया है, द सिंगल लैंड पीस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, बाय द बिगिनिंग, मतलब बाय द बिगिनिंग ऑफ द ट्रायासिक एरा, मेसोजोइक एरा के जो बिगिनिंग है, ठीक है, तब टेथिस सी विच इज सिमिलर टू प्रेजेंट डे मेडिटेरेनियन सी, सील क्यों लिख दिया पता नहीं मैंने, मेडिटेरेनियन सी, and also it was surrounded by a Panthalassa, a water body called as Panthalassa, which is present day Pacific Ocean. तो लैंड पीस जो था एक जैसा ही था, एक ही साथ अटैच था, बट देर इज अ डिसएडवांटेज इन सच अ कंडीशन. सो देर इज एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अगर जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं है ना, so there won't be any competition with respect to the growing animals. Okay, so Mediterranean Sea, Tethys Sea और Pacific Ocean, in other words, अगर इतना बड़ा लैंड पीस है बेटा, इतने बड़े लैंड पीस पे जो कंपटीशन विद रिस्पेक्ट टू द एनिमल्स होंगे वो दे विल बी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर. ओके,
और जो वीक ऑर्गेनिज्म है वो मरते मरते जाएंगे. सो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिजम्स दैट विल बी समवेयर डाउन द लाइन रेस्ट्रिक्टेड, बिकॉज जो वीक ऑर्गेनिजम्स है वो तो खत्म होते जाएंगे बिकॉज अदर ऑर्गेनिजम्स विल बी ईटिंग देम अप. सो पैंथेलेसा एंड ये आपको कुछ भी इसमें से याद इतना ही रखना है पूरी स्टोरी. पैंजिया था. ओके अब ये पैंजिया जो है, पैंजिया गॉट सेपरेटेड. धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट, व्हेन यू टॉक अबाउट टेक्टोनिक प्लेट, इट इज द प्लेट ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना. अर्थक्वेक कॉज कब होता है? जब टेक्टोनिक प्लेट मूव करते हैं. इज दैट राइट? सो सिंस दैट टाइम, millions of years ago, this particular supercontinent called Pangaea started to shift from its original position. ठीक है, तो सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ पैंजिया जो है दैट गॉट सेपरेटेड बाय द एंड ऑफ द ट्रायासिक पीरियड. पैंजिया गॉट सेपरेटेड इनटू लोरेशिया एंड गोंडवाना. ओके, सो इन अदर वर्ड्स पर्मियन वही कार्बोनिफरस के बाद पर्मियन है, तो आपको पूरा पैंजिया दिख रहा है यहाँ पे. कैन यू सी दिस पूरा खंड लैंड पीस. सो जैसे ट्राइएसिक पीरियड, बाय द एंड ऑफ द ट्राइएसिक पीरियड पैंजिया गॉट स्प्लिट इनटू द टू. लोरेशिया which form the northern hemisphere, all the countries of the northern hemispheres, and Gondwana which form the countries of the southern hemisphere. अब इंडिया अलग है बेटा, इंडियन सदर्न हेमिस्फीयर में था, बाद में वो इंडिया जाकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लगा है. कब हुआ ये सेपरेशन? दिस सेपरेशन टुक प्लेस बाय द एंड ऑफ ट्रायासिक पीरियड. ओके, अब धीरे धीरे व्हाट हैपेंड, दिस by Jurassic period slowly and steadily साउथ अमेरिका जो है, कैन यू सी दिस, तो साउथ अमेरिका के बीच में एक ब्रेक आ गया. तो साउथ अमेरिका गॉट सेपरेटेड व्हेन इन द जुरासिक पीरियड. ओके, हम धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट, अर्थ की प्लेट जो है धीरे धीरे मूव होने लगी. सो स्लोली एंड स्टेडली इट गेव राइज टू नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका एंड यूरोप एंड रशिया. ये तो अभी के हिसाब का मैप है, ठीक है, बट अभी तक तो ये स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं है. सो बाय द एंड ऑफ द जो मीसोजोइक एरा, दैट इज नियरली अराउंड द क्रिटेशियस एरा, वी अज्यूम दैट nearly around the Cretaceous era, we assume that slowly and steadily the South America they started shifting from the mainland Africa. इसलिए साउथ अमेरिका और अफ्रीका में थोड़ी सी वेजिटेशन सिमिलर दिखती है, ठीक है. ऑस्ट्रिचस साउथ अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रिचस अपने अफ्रीका में भी है ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है. सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग. जो रिमेंबर करना है वो मैं आपको बता दूंगा. ओके, सो प्रेजेंट डे जो आपको मैप दिख रहा है दैट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट. एंड अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट दे आल्सो बिलीव दिस, दैट दिस पर्टिकुलर थियोरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, ये जो थियोरी है ये आज भी वैलिड है. एंड स्टिल there is some kind of movement, some mild movement which is still happening on the face of the earth. It cannot be I would टेक्निकली बोलने का मतलब ये है बेटा, स्लोली एंड स्टेडली मूवमेंट हो रहा है. ऑर्गेनिजम्स, लैंड पीस जो है एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो रहा है, बट दैट चेंज, दैट मूवमेंट इज एब्सोल्युटली स्लो, हेंस इट इज एब्सोल्युटली नॉट नोटिसेबल. इज दैट राइट? सो जब ये चीजें होती गई बेटा, ये धीरे धीरे होते गया, और ये जो इंडिया है हमारा दैट वॉज देयर इन द पार्ट ऑफ गोंडवाना. और 40 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया रैम्ड, मतलब इंडिया लेफ्ट, इंडिया का जो मूवमेंट है इट लेफ्ट द सदर्न हेमिस्फीयर and joined the Asia.
सो इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो वेजिटेशन है, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज विच वेर वेरी प्रेवलेंट इन दोज टाइम्स. ओके, तो फॉर बोलने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट वेजिटेशन बोलो, ऑलमोस्ट एनिमल लाइफ बोलो, तो ये अफ्रीका के साथ नियरली सिमिलर है. इज दैट वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बेटा? सो दैट इज द रेफरेंस. फिर धीरे धीरे देखो मडगास्कर भी सेपरेट हो गया. दैट इज द डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, where biogeographical evidence where it talks about because of the tectonic plate movement, the biodiversity of each land was separated, and each continent was surrounded by water, and hence within the continent the organism got a greater scope to reproduce. ओके, अगर रिप्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो उनमें वेरिएशंस ज्यादा होंगे. इज दैट वेरी क्लियर बेटा? ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस है अबाउट इंडिया. इज दैट राइट? सो इंडिया इतना समझा बेटा? ठीक है. सो आज जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड मैप आज देख रहे हो, दैट इज दिस वे. सो यू हैव 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, out of which 6 are habitable. Antarctica is not very habitable because it is technically near the pole of the earth, and the temperatures are freezing cold. Is that very clear? ठीक है. So this is what we need to. जब ये लैंड पीसेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तो उसके अंदर के प्लांट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उसके अंदर के एनिमल्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और दोनों को चांस मिला फॉर डूइंग सिलेक्ट, दोनों को ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. इज दैट राइट? अगर ये एक कॉन्टिनेंट ऑफ पैंजिया ही होता तो देयर वुड हैव बीन ग्रेटर अमाउंट ऑफ कंपटीशन. देयर वर नो जियोग्राफिकल आइसोलेशन, बट यहाँ पे उनको जियोग्राफिकल आइसोलेशन करने का स्कोप मिला, राइट? बिकॉज ऑफ द नेचुरल मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स जियोग्राफिकल आइसोलेशन होते गए. अगर जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, सो इफ देयर इज अ लायन हु हैज टू मेट, right, in case of geographical isolation, the lion which had to hunt, ठीक है, अब बिकॉज इट वॉज कवर्ड एंटायर लैंड पीस था, तो वो लायन इस जगह से आराम से यहां पे आ सकता था बाय रनिंग. बट सिंस नाउ ये जो पैंजिया का रीजन है वो सपोज यहां पे आ रहा है और लायन हमारा यहां पे है, so in this particular condition the traveling absolutely becomes very difficult. Is that very clear? So in India यही आपको याद रखना है कि इंडियन और अफ्रीकन जो क्या बोलते हैं उसको, अफ्रीकन और जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी है, दैट इज ऑलमोस्ट दी सिमिलर. अफ्रीकन लाइक एलिफेंट्स और इंडियन एलिफेंट्स को देखोगे, दे आर ऑलमोस्ट दी ऑफ सिमिलर फीचर. Is that very clear बेटा? ठीक है. So that is with respect to the biogeography. Okay. So in other words, okay. So that is with respect to biogeographical evidences. I will simply show you this because of this continental drift. The earth is now divided under different realms. अब realms का मतलब क्या है? different empire, ठीक है, with respect to the biodiversity. So this empire which you can see near Australia, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया ये सब एक साथ आते थे पहले के ज़माने में 40 years ago, बट स्टिल आउट ऑफ 1 second, ओके, ऑस्ट्रेलिया बहुत पहले ही सेपरेट हो गया था, एंड ऑस्ट्रेलिया वॉज नाउ सराउंडेड बाई द वाटर. सो अगेन ऑस्ट्रेलिया वॉज अ ग्रेटर हब ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन. ओके, अब जो डिफरेंट रेल्म्स है विद रिस्पेक्ट टू द बायोडाइवर्सिटी, इट इज डिवाइडेड एज फॉलोज. ठीक है. सो द रीजन ऑफ यूरोप, the region of the entire Europe, the region of the entire
Okay, the region of the Europe, region of the entire Asia is now referred to as the Palearctic. Palearctic. Palea refers to fossils और आर्टिक के तरफ है मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. सो दैट रीजन विच इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, विच इंक्लूड्स यूरोप एंड इंडिया एंड एशिया इज रेफर्ड टू एज पेलियार्टिक जोन. ठीक है. वैसे ही जो न्यूली फॉर्म हुआ है दैट इज नॉर्थ अमेरिका, दैट नॉर्थ अमेरिका इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज निया आर्टिक. ओके, निया आर्टिक रेल्म, निया आर्टिक रेल्म. कौन सा? ये न्यूली फॉर्म हुआ है, ऐसे याद कर लो. न्यूली, न्यूली मतलब निया, निया आर्टिक, दोनों आर्टिक की तरफ है इसलिए निया आर्टिक. दिस इज रेफर टू एज, ये साउथ अमेरिका का अलग बायोडाइवर्सिटी है तो साउथ अमेरिका को हम बोल देंगे ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, साउथ अमेरिका को हम बोलेंगे नियोट्रॉपिक क्योंकि न्यूली फॉर्म हुआ है. ओके, न्यू आर्टिक रेल्म. ओके, अफ्रीकन रीजन इज नाउ रेफर्ड टू एज, अफ्रीकन रीजन जो है इट वाज रेफर्ड टू एज द इथियोपियन. ओके, सो इथियोपियन रीजन या इथियोपियन रेल्म और इंडिया, ये सब जो रीजन है इंडिया, चाइना, जावा, सुमात्रा, ऑल ऑफ दैट is now referred to as the Oriental region. Is that very clear? So Asia, Africa, नेपाल, नेपाल नहीं बोल रहा हूँ, माई मिस्टेक, गलती हो गई बेटा, माई मिस्टेक. तो इंडिया और जो साउथ ईस्ट एशिया है दैट इज जावा, सुमात्रा, बाली, ये सब जो एरियाज है दे आर ऑल इंक्लूडेड अंडर ओरिएंटल. इसीलिए चाइनीज डिश को हम ओरिएंटल डिश बोलते हैं बेटा. ठीक है. सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, दैट इज रेफर्ड टू एज द ऑस्ट्रेलियन रेल्म. ओके बेटा. तो इन अदर वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 रेल्म्स में उसने हमको एक साइकिल में ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट विद इन हाफ एन आवर वी स्पोक अबाउट द एंटायर Pangea got splitting into slowly and steadily earth moving towards the slowly and steadily जो है ये अर्थ के जो लैंड पीसेस है they were slowly and steadily moving away from each other, thereby leading to spread of the animals, spread of the plant and vegetation. Is that right? Which led to the formation of 6 different realms. अंटार्कटिका को हम कोई भी realm में गिनते नहीं है because still it is inevident. Yeah, technically it is of no use, सिर्फ research park बनाने के लिए यूज है. Is it very clear बेटा? So that ends with our session with atavism and ये important नहीं है बट इसके ऊपर कुछ रेफरेंस बुक्स में क्वेश्चन दिए हैं सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. ओके, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम इंपॉर्टेंट है बट एनसीईआरटी में जितना दिया उतना तो पढ़ना पड़ेगा. इज दैट वेरी क्लियर? So that's all for today. Take care of yourself. I wanted to show you these maps and it is practically impossible for making this map on the screen. ठीक है? So I wanted to make this map and show it to you. Is that very clear? Okay. So that's all for today. I wind up. I rest my case now. I wind up. Thank you so much for watching the